جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا؟ یعنی جنت میں کس طرح کے لوگ جائیں گے اور جہنم میں کس طرح کے لوگ جائیں گے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ آئیے ہم اپنی بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جو کائنات کا سچا مالک ہے، جو کائنات جس نے بنائی ہے، جو چلا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کائنات جو بنائی ہے وہ ایک ہے، اس کے اچھے نام انیک ہیں، اسے ہم اچھے ناموں سے پکار سکتے ہیں۔ تو ایشور نے، اللہ نے یہ کائنات جو بنائی ہے بن دیکھے اپنی پہچان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو بھی اسی لیے پیدا کیا ہے کہ بن دیکھے وہ اللہ کی پہچان کرے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہے نا؟ تو یہ اس نے اپنی پہچان کے لیے کائنات بنائی ہے، اور ہماری رچنا میں اپنی محبت اس نے رکھ دی ہے، اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ بھی مقصد رچ دیا ہے۔ اب چونکہ دنیا میں جو ہے شیطانی ماحول ہے، اس شیطانی ماحول میں انسان بہہ جاتا ہے اور سچ کو جھوٹ، جو ہے جھوٹ پہ جو ہے چلتا ہے، کوئی احساس نہیں کرتا، غور نہیں کرتا۔ جب 1000 جھوٹے ہوں تو اس میں ایک انسان بھی اس جھوٹ میں بہہ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس دنیا میں ہم سمجھیں کہ جھوٹ زیادہ ہے، سچ بہت کم ہے۔ اس کو عام طور پہ لوگ جانتے بھی ہیں۔ اگر ہم کسی سے سوال پوچھیں، بھئی یہ بتاؤ دنیا میں جھوٹ زیادہ پھیلا ہوا ہے یا سچ؟ دنیا جھوٹ پہ زیادہ چل رہی ہے، سچ پہ زیادہ چل رہی ہے؟ تو بچہ بھی کہہ دے گا کہ جھوٹ پہ زیادہ چل رہی ہے، لوگ زیادہ جھوٹ پہ چل رہے ہیں۔ اب ہم سمجھیں کہ پہلے انسان آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ ایک جگہ ہے عالم ارواح، وہاں پر سارے انسانوں کی آتماؤں کو، روحوں کو پیدا کر دیا تھا۔ پھر وہاں اقرار کرایا تھا اللہ جو ہے کہ کہو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہیں پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، پالنے والے ہیں۔ تو پھر وہاں پر جو ہے پوچھا کہ جو ہے کون ایماندار ہے؟ سب نے کہا کہ ہم ایماندار ہیں۔ ایماندار کا مطلب ہے بن دیکھے ایمانداری پہ چلنا، سچائی پہ چلنا، اور سب سے بڑی ایمانداری یہ ہے کہ اپنے مالک کی کھوج کرنا، پہچان کرنا، پھر جھوٹ کو چھوڑ دینا، ساری دنیا جھوٹ ہے، موت پہ سب ختم ہو جائے گا، ہے نا؟ رب کے حوالے دل کر دینا، اس کی محبت کو حاصل کرنا۔ تو وہاں سب نے کہا تھا۔ پھر کہا گیا کہ اب جاؤ، ہم تمہیں امتحان کی دنیا میں بھیجیں گے اور وہاں پر تمہارا ٹیسٹ لیں گے، کون ایماندار ہے، کون بے ایمان ہے۔ تو وہاں ہر انسان کی چاہت یہ تھی کہ یا اللہ جلدی مجھے دنیا میں بھیج، اور میں اس امتحان کی پریکشا میں، اس امتحان کی دنیا میں ایماندار بن کے آؤں، تیری محبت لے کے آؤں۔ تو نے میری زندگی کی کہانی شروع کری ہے، تو نے پیدا کیا ہے، جیون دیا ہے، تو لہٰذا میں تیرا محبوب پریہ بندہ بن کے آؤں، سب کی محبت چھوڑ کر تیری محبت لے کے آؤں، تیرا محبوب پریہ بندہ بن کے آؤں، اور میں پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں جاؤں اور مزے کروں۔ تو یہ ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے، جو بھی بچے دنیا میں آتے ہیں نا، یہ روحیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اللہ نے ایک نیم بنایا ہے، وہاں پر ہوش و حواس میں یہ بات اقرار کرایا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک نیم بناتا ہے کہ دنیا میں جو ہے انسان کو اسباب کے دوارا، ذریعے کے دوارا، ماں باپ کے سنبھوگ سے، اور پھر بچے کے روپ میں انسان کو پیدا کرتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے اس میں عقل ہے، سمجھ ہے، آنکھوں کا طور ہے، کانوں کی سننے کی جو ہے طاقت ہے نا؟ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے۔ اور پھر جوانی میں جب انسان قدم رکھتا ہے تو اس کو پھر پوری طاقت، جوانی کی طاقت، سب چیز کی طاقت، عقل کی طاقت، پختگی، ہر چیز دیتا ہے، اور پھر اس کا انتظار کرتا ہے۔ یعنی کہ پچھلی یادیں بھلا دی اللہ نے، جو وہاں پر جو عالم ارواح میں بات ہوئی تھی وہ بھلا دی ساری۔ اب دنیا میں بالکل ایک نئی طریقے سے انسان کا جو چہرہ ہے، فیس ہے سامنے کا، وہ دنیا کی طرف کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے پیٹھ کر دیتا ہے۔ اب چل دنیا میں اور پہچان یہ کائنات کون چلا رہا ہے، کس نے دھرتی کا بچھونا بچھایا، کس نے آسمان کو چھت بنایا، کس نے ہواؤں کو چلایا،
कौन तुझे पानी जो है ज़मीन के अंदर से निकाल रहा है पीने के लिए, है ना, कौन तुझे रोजी पैदा कर रहा है खाने के लिए। इंसान की हर वक्त ज़रूरत है खाने की, पीने की, है कि नहीं, हर वक्त ज़रूरत है। तो ये हर वक्त खाने पीने को कौन दे रहा है? पहचान मेरी पहचान कर, हैं। हाँ, अब इंसान के अंदर अकड़ने का मादा भी रखा है और जो है झुकने का मादा भी रखा है। अब घमंड सिर्फ अल्लाह के लिए है, अल्लाह को अच्छा लगता है, अल्लाह के लिए है सारा घमंड। अब जो इंसान अपनी औकात को पहचान ले कि मैं गंदे पानी कतरे से पैदा हुआ हूँ, हकीकत पर गौर करे, और मेरे पेट में गंदगी है और कल परसों को मैं मिट्टी मिल जाऊँगा, हैं, और फिर अल्लाह की शान को पहचाने, अल्लाह की तारीफ़ को पहचाने इस कायनात में, अपनी ज़िंदगी से और इस कायनात से। दो चीज़ तो है दुनिया में, एक इंसान का अपना जीवन है और एक सामने की दुनिया है, समझे। तो एक इंसान के मन के ख्यालों की दुनिया और एक सामने की दुनिया, इसमें अपनी औकात को पहचानना है इंसान को। अब बात को समझें कि अल्लाह ने ये कायनात अपनी पहचान के लिए बनाई कि बिन देखे मेरे बंदे मुझे पहचाने। अब अल्लाह का ऐलान है कि मेरे बंदो, ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब मेरा है, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझ जैसा कोई नहीं। कुल हु अल्लाहु अहद, मैं एक हूँ, अल्लाहु समद, हर चीज़ मेरी मोहताज है, मैं किसी का मोहताज नहीं, है ना, मैं बेनियाज हूँ, सब मेरे मोहताज हैं, मैं किसी का मोहताज नहीं। लम यलिद वलम यूलद, न मैंने किसी को अपने पेट से पैदा किया है जैसे माँ जनती है बच्चे को, और ना मैं किसी और के पेट से पैदा हुआ हूँ। ना मेरी शुरुआत है ना मेरा अंत है, कुछ ना था मैं था, कुछ ना रहेगा मैं रहूँगा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तुम मखलूक की बराबरी मुझसे करते हो, जो मेरी पैदा की हुई चीज़ें हैं, ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब पैदा की हुई चीज़ें हैं, और टाइम टेबल से ये चीज़ें पैदा होती हैं और मिट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। जो चीज़ पैदा है वो ना पैदा हुई है। तो अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान से बाहर है, टाइम टेबल से बाहर है, क्योंकि वो ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है, वो टाइम टेबल में नहीं आता, वो वहीं से हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, देख रहा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के जैसा इस कायनात में कोई नहीं है। अल्लाह सबसे अलग और निराला है, क्योंकि वो सबका पैदा करने वाला है, ये सब मखलूक है। अब अल्लाह ताला दिखाई नहीं दे रहा, मौत के बाद की ज़िंदगी दिखाई नहीं दे रही, तो भाई अकल दी है, इससे हकीकत को समझें। ये पूरी कायनात एक मालिक के इशारे पर चल रही है। क्या तुम्हारी अकल नहीं कहती कि मालिक इस कायनात का एक है? तुम्हारी रचना में खुद रचा हुआ है उसने कि मैं एक हूँ, तुम एक को ही दुख तकलीफ में पुकारते हो। तो जो अल्लाह की प्यास में अपने अंदर ईश्वर की बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचता हुआ सच पर चलेगा, और अल्लाह की रचना के आधार पर इस धरती पर कुरान मौजूद है, उसमें अल्लाह की मर्ज़ी समझेगा, अल्लाह की प्यास में आगे बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो है वो उसे जो है समझ में नहीं आएगा या वो गुमराह होगा, नहीं, अल्लाह उसे पकड़ेगा। अल्लाह की जो किताब है उसे चुम्बक की तरह से चिपका लेगी। तो हम समझें इस चीज़ को, अल्लाह का ऐलान है कि मेरे बंदो सब कुछ मेरा है इस कायनात में, ये कायनात मैंने अपनी पहचान के लिए बनाई है। अब ये सारी कायनात जो है झूठ है, क्योंकि मौत पे ख़त्म हो जाएगा। एक झूठ है इंसान के अंदर का घमंड, अहंकार। जब इस झूठ को समझ लेगा, सच पे आ जाएगा, तो मुझे पा लेगा। तो सब कुछ मेरा है, ये कायनात मैंने बनाई है। अब इस कायनात में जो बिन देखे मेरी पहचान करेगा, और मैंने इंसान की शुरुआत करी है, मैंने इसको पैदा किया है, सबसे पहला रिश्ता मुझसे है इंसान का, और मेरे हवाले दिल कर देगा और मुझसे मोहब्बत करेगा। कायनात झूठी है, इससे दिल हटाएगा, मुझसे दिल लगाएगा और मेरी मोहब्बत मर के लेके आएगा, वो जन्नत में जाएगा। तो याद रखें, जो मौत के बाद की अल्लाह की खोज करेगा, समझेगा, पहचान करेगा, वो समझ जाएगा कि मौत के बाद ज़िंदगी है, मौत के बाद ज़िंदगी, उसका ईमान होगा। और वही धरती पर अच्छा इंसान बन सकता है जब वो दिल में ये समझ लेगा कि मौत के बाद ज़िंदगी है और मुझे अच्छे कर्मों का अच्छा बदला मिलेगा, बुरे कर्मों का बुरा बदला मिलेगा। दिल से में उसकी ये बात ठुक जाएगी, तो फिर मेरे भाइयों धरती पर वो फसाद नहीं फैलेगा, किसी को तकलीफ नहीं देगा। अच्छा इंसान जब ही बनेगा, ईमान उसके पास होगा जब भी अच्छा इंसान बनेगा, ईमान वाला। तो जब इंसान दिल से खोज करता है तो वो समझ जाता है असल में कि मौत के बाद ज़िंदगी है। फिर वो एक ईमानदार बनता है, सच्चा इंसान बनता है, अंदर से जो है खुद
अपनी मर्जी से। याद रखें, अल्लाह ने हर इंसान का इम्तिहान लिया इस दुनिया में भाई, और उसे ये इख्तियार दिया है कि अपनी मर्जी से, अपनी जिम्मेदारी से, अपने फ़ैसले से, अपने इरादे से अच्छा इंसान बन जाए या बुरा बन जा, ईमानदार बन जाए या बेईमान बन जाए। जीवन का सबको समय दिया है, तो इंसान डंडे से नहीं हाँक सकते इंसान को हम। इंसान खुद फैसला करता है, खुद सोचता है कि मुझे अच्छा इंसान बनना है, तब वो अच्छा इंसान बनता है। याद रखें, अपनी मर्जी से बनता है। यही अल्लाह को पसंद है, इसीलिए इंसान को पैदा किया है। तो जिस इंसान का यकीन मौत के बाद की ज़िंदगी पे है ना, और उसने ईमान बना लिया अपना, तो वो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला से जन्नत में दाखिल करेगा। और जो इंसान ये समझ के मरा कि मौत के बाद कुछ नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि उसने अल्लाह की पहचान ही ना करी। अल्लाह ने उसको जीवन दिया, सब कुछ दिया, उसने कदर ना करी अल्लाह की, समझे। अब वो मुसलमान कहला रहा हो, दाढ़ी वाला कहला रहा हो, कुछ भी कहला रहा हो, जिसका अंदरूनी यकीन ये है हकीकत में अंदर से, दिल से, कि मौत के बाद कुछ नहीं है, याद रखें, ऐसा इंसान जहन्नुम में जाएगा, जहन्नुम में। सच्चाई पर चलने वाले को ईमान वाला कहते हैं। इस कायनात में सच्चाई पर गौर ना करे हैं कि यहाँ कितने लोग रोज़ मर रहे हैं। मैंने खुद देखा इस दुनिया में भाई, जब से मैंने होश संभाला तो मैंने देखा कि लोग थोड़े थोड़े दिन जी कर मर मर कर यहाँ से कितने चले गए, कितने चले गए। इंसान सच पर गौर करे कि इस ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा अक्लमंद अगर कोई है तो वो इंसान है। सारे जीवों में इंसान है, और अक्लमंद इंसान अपने से कम अक्लमंद चीज़ों की पूजा कर रहा है, उनके आगे सर झुका रहा है। जैसे पत्थर है, पेड़ है, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। आप देख लें कि ज़मीन और आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब मखलूक हैं अल्लाह की, और इसकी पूजा में लोग लगे हुए हैं। तो भी जिस खुदा ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया, इस इंसान ने अकल से उसको पहचानने का काम ना किया। अल्लाह ने अकल दी कि सही सच की पहचान कर। तो मेरे भाइयों, एक साइंटिस्ट ने सर्च किया था कि हम इंसान इस दुनिया के नहीं हैं, हमें इस दुनिया के लिए नहीं बनाया गया है। और हकीकत में देखा जाए तो ये बात सच है कि हम दूसरी दुनिया के लिए बनाए गए हैं। हमें अल्लाह ने जन्नत की दुनिया के लिए बनाया है। ये दुनिया हमें सूट नहीं करती। ये दुनिया मौत का घर है, हम मौत को पसंद नहीं करते। ये दुनिया बुढ़ापे का घर है, हम बुढ़ापे को पसंद नहीं करते। जन्नत में मौत बुढ़ापा कुछ नहीं, हर डर और गम से इंसान आज़ाद है वहाँ पर। वो दुनिया अलग तरह से बनाई गई है। तो यहाँ पर दुख तकलीफ़ हैं, हम इन्हें पसंद नहीं करते। अल्लाह भेजता है तो हम रोक नहीं सकते। गर्मी पड़ती है, वो हम नापसंद करते हैं उसको, गर्मी अच्छी नहीं लगती हमें। तेज़ ठंड पड़ती है, वो हमें अच्छी नहीं लगती। जन्नत में ना सर्दी है ना गर्मी है, ये हमें पसंद है। तो हम जन्नत के लिए बनाए गए हैं। ये रचना हमारी जो है इस हिसाब से बनाई गई है, हमारी बनावट, कि हम जन्नत के लिए बनाए गए हैं। मगर उससे पहले हमारा इम्तिहान लिया गया है। जो अल्लाह को पहचान कर मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन करके अच्छा इंसान बनकर, ईमानदार बनकर, अल्लाह को राज़ी करके, अल्लाह से मोहब्बत करके, अल्लाह का प्रिय बंदा बन के मर के जाएगा, वो उस जन्नत में जाएगा भाई, याद रखें। और जो मौत के बाद की ज़िंदगी से अंधा होकर जाएगा, धरती पर फसाद फैला के जाएगा, याद रखें, जो ये कहेगा कि मौत के बाद कुछ नहीं है, वही फसाद फैलाएगा, वही बेईमान बनेगा। हाँ, वही बेईमान बन के मर के जाएगा, अल्लाह की नाकदरी करके जाएगा, अल्लाह से दुश्मनी निभा के जाएगा, वही जहन्नुम में जाएगा। तो इस कायनात में इंसान सच पर गौर करे कि कितना भयानक मंजर है कि इंसान को कब्र में दफनाते हैं, है ना। अलग अलग धर्मों में देखें, जलाते हैं, दफनाते हैं। कितना भयानक मंजर है जो इंसान के साथ होने वाला है। मगर इंसान ऐसे बेखबर है, उससे सच को देखकर, दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिरता है, कोई परवाह नहीं है। आप कब्र में देखें कि कब्र कैसे खोदी जाती है, पतली सी जो है, अंदर से देखें आप, अगर उसमें मनो मट्टी लाद दी जाती है, तख्तों से पाड़ दिया जाता है। अगर ना भी उसमें मट्टी भरें, ऐसे खुली रहने दें और उसमें लिटा दें हमें, हैं, तो दो तीन दिन भी गुजारने भारी पड़ जाएंगे, 4-5 घंटे भी गुजारने भारी पड़ जाएंगे उसमें। तो भाई इंसान कुछ तो अपने अंजाम के बारे में सोचे। इस दुनिया में ऐसे जी रहा है ऐसे हमेशा रहेगा, कभी मर के जाएगा ही नहीं। तो भाई सच पर गौर करें, हैं, ईमानदार वही है
جو اللہ کی پہچان کرے، کھوج کرے، موت کے بعد کی زندگی پہ یقین کر کے اچھا انسان بن جائے، کسی کو تکلیف نہ دے، حقیقت کو سمجھ جائے۔ تو بھائی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی سچائی کے ہوش میں آئیں۔ علم گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے، میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا۔ میں نے کیا بتایا ابھی، اللہ نے اپنی پہچان کے لیے دنیا بنائی ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا ہے، اپنی کتاب بھیجتا ہے، اسی لیے تاکہ میرے بندے بن دیکھے مجھے پہچانیں اور مجھے راضی کریں اور مجھ سے محبت کریں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا علم حاصل کرو، لگ جاؤ، دنیا سے دھیان ہٹاؤ، گانوں سے، فلم سے، ہر چیز سے، ہر برائی سے اپنے آپ کو پھیر لو اور اللہ کے سچ پہ دھیان لگاؤ، اللہ کی مرضی کو سنو لگاتار۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی سچائی پہ دھیان لگے۔ دھیان سے بھٹکے ہوئے ہیں یہاں پر لوگ، اور بھائی انشاءاللہ اللہ نے چاہا، ایشور نے چاہا، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ زندگی بڑی بیکار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔